Hi everyone, welcome back to EduTap. After seeing the thumbnail of this video, you might be thinking that why we are discussing the strategy for 2024 when 2023 का phase 1 भी नहीं हुआ है. So I agree, most of you might be preparing for 2023, but there are many who are preparing for 2024. तो उन सब के लिए ये वीडियो है सिर्फ 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, वेयर इन आई वुड बी डिस्कसिंग द 4 स्टेप स्ट्रैटेजी, जो एक बेसिक स्टेप्स हैं दैट यू शुड बी टेकिंग राइट नाउ इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 2024. और ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2024 के एग्जाम में भी आई डू नॉट थिंक कि बहुत ज्यादा टाइम बचा है, बिकॉज इफ यू सी द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन डेट्स, 2021 में नोटिफिकेशन केम इन जैन इटसेल्फ, देन इन मार्च इन 2022 एंड देन इन अप्रैल. सो इट कैन कम एनी टाइम in the first quarter or early second quarter next year also. You never know that the notification might be there in 2024 in the month of Jan or Feb. तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, less than a year. It's high time that you understand these steps, start executing so that by September or October you are in full-fledged preparation, you are in full throttle mood to kill this examination. तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा एंड इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहूंगा. This is a guidebook, comprehensive guidebook, which will tell you everything about RBI Grade B exam. 3 things specifically: detailed syllabus, detailed book list, and detailed PYQs you will get from this guidebook. और ये PYQs आपके लिए previous year questions बहुत जरूरी हैं, because this will give you in-depth insight about how should you be preparing for different components. तो इसको आज ही डाउनलोड कीजिए. The download link is given in the description of this video. It's completely free to download this, enjoy this and get your next dose of motivation. पढ़कर जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये गाइड बुक. Now what are the 4 steps that you should be executing? The first one is self-belief. Very, very important. I know this kind of gyan you will get on a lot of YouTube channels, but this is the same mistake you are doing again and again. Self-belief is very, very important. See, you have doubted yourself throughout your life and you have seen the results. You're not able to achieve anything. I would just request you to start believing in yourself maybe for next 1 year and you will see the results. ये बहुत बहुत जरूरी है. And I know there might be many doubts in your mind which are contrary to self belief. ठीक है, जैसे काफी लोगों को लगता होगा कि सर मैं तो क्वांट में बहुत वीक हूं, मैं कैसे क्लियर करूंगा? I am from Hindi medium, how will I be able to perform good in an interview? I am from non-finance background, non-economics background, I am from non-UPSC background, I'm just a beginner, I don't know anything, I do not have any work experience. So you might have your own reasons to believe that you will not be able to make this exam. But I just want to tell you one thing, that yes, the question you are asking yourself, can I, is a valid question at this point in time, because there are a lot of reasons which are making you believe that you might not be able to clear this exam. But all I can say is that in my experience of past 6 years in this field, I've seen people from background as diverse as pharma, architecture, hotel management, agriculture, physics, chemistry, bio, clearing this exam. So if they can do it, so can you. They are just like you with similar backgrounds. They are weak in quant and reasoning. They are weak in English. Many of them are from Hindi medium. Many of them are from non-finance, non-economics background. So they're just like you. If they can do it, so can you. So the question is not can I. This is the wrong question. The right question should be how can I. The right question should be how can I? If they can do it, I can also, but what is my best strategy? And always remember this, cracking any competitive exam is about 80% mindset and 20% skills. अगर आपका mindset पॉजिटिव होगा, ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट अगर नेगेटिव होगा तो पक्का है कि आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे. That is why I am emphasizing again and again on the importance of self-belief. Next step is choose your exams wisely. 80% लोग एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर रियली कंफ्यूज दैट विच एग्जाम्स टू प्रायोरिटाइज. इंश्योरेंस के एग्जाम भी देने हैं, बैंकिंग के एग्जाम भी देने हैं, क्लैरिकल के एग्जाम भी देने हैं, आरबीआई भी देना है, नबार्ड भी देना है, सेबी भी देना है, मे बी यूपीएससी भी ट्राई कर लेते हैं, मे बी एसएससी भी ट्राई कर लेते हैं. You are indulged in so many exams that you are not able to prepare effectively for any single exam. ज्यादा एग्जाम देने से एग्जाम नहीं क्लियर होता है. एक एग्जाम या 2 एग्जाम या मैक्सिमम 3 एग्जाम अच्छे से तैयारी करने से एग्जाम क्लियर होता है. तो ये बहुत जरूरी है that you set your targets for the next year, that maybe these are the only 3 exams that I am going to give next year. Then no matter what, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी हो, मैं इसके अलावा एग्जाम नहीं देने वाला. तो ये आपको एग्जाम बहुत अच्छे से चुनने पड़ेंगे. लिमिटेड एग्जाम चुनो, 3 या 4.
एंड चूज एग्जाम्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सेम सिलेबस है यार उनका. Do not choose exams which have totally different syllabus. For example, if you want to go for SBI, PO and RBI, they are complementary to an extent, because RBI में जो आप phase 1 में पढ़ेंगे वो SBI, PO और IBPS, PO में help करेगा. If you want to go for say RBI and UPSC, they are also similar to some extent. काफी syllabus overlap है. So choose exams in a limited manner and choose the ones which are complementary, so that when you prepare for first exam, it helps you in your selection for second exam. इसको बहुत जरूरी है इंप्लीमेंट करना, नहीं तो यू विल ऑलवेज फील लॉस्ट, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बात की थी वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं. तो थर्ड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न. अगर आप एग्जाम पैटर्न देखें यहां पे बहुत क्लियरली यू विल सी कि फेज 1 विच कंसिस्ट ऑफ जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है. दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट कि यही आरबीआई ग्रेड बी है, इसको कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा. यू माइट रीड दीज सब्जेक्ट्स थ्रू आउट द ईयर. यस, यू विल क्वालिफाई फेज 1, बट योर अल्टीमेट टेस्ट, योर मेरिट विल बी बेस्ड ऑन फेज 2, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश. This is totally alien to you right now for many of you, and your phase 2 papers are 50% descriptive also, और इंग्लिश तो पूरा ही डिस्क्रिप्टिव है. तो यहां पे you need to practice a lot on answer writing. There is no need to be confused about it. The only thing that I want to emphasize here is कि सिर्फ ये मत सोचो कि ये आरबीआई. आधे लोग इसी को आरबीआई समझते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को, और इसी पे लगे रहते हैं. That is not the solution. This is just a qualifying section. नीचे मेहनत करनी पड़ेगी phase 2 में right now, because after phase 1 you will not get time. और इस पे जो मेहनत करनी है that has to be done from the angles of both objective and subjective again right now. People read only for the objective part. They delay the subjective part for later, and that later will never come. तो इसको अच्छे से समझ लो. और ये तो एग्जाम की स्कीम है. अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द एग्जाम आई थिंक कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. These are the two headlights of your preparation. These are like God's hand on your head. कि अगर आप सिलेबस और पीवाईक्यूज समझ लें, आपको आधी कहानी समझ आ जाएगी इस पिक्चर की. Syllabus helps you define the scope. For example, many students come to me and ask, सर फाइनेंस कैसे करेंगे, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है. अरे आप टॉपिक्स तो देखो, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, रोल ऑफ आईटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट्स. कहां से ये फाइनेंस है? दिस इज नॉट कोर फाइनेंस विच मेनी पीपल आर स्टडिंग इन एमबीए और देयर सीए. सो इसमें आपको सोचना नहीं है ये फाइनेंस. इफ यू जस्ट लुक एट द स्कोप ऑफ दिस, यू विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट फाइनेंस. दैट्स व्हाई लुकिंग एट द सिलेबस एंड अंडरस्टैंडिंग योर स्कोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली सिलेबस से भी एक बहुत अच्छी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. काफी सब्जेक्ट्स का सिलेबस नहीं दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में. फॉर एग्जांपल क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? पीवाईक्यूज देख के, सिंपल. बाकी अगर सिलेबस दिया भी हुआ है, हाउ डू यू नो इसमें से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, विच चैप्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, what is the depth at which you should be studying each of these chapters? How do you know that? You know each of these things again by looking at the previous year questions. So make sure that whenever you start any component, you go through the detailed syllabus of that. Whenever you start any chapter, you go through the previous year questions of that. Previous year questions नहीं है, कोई बात नहीं. EduTap की वेबसाइट पे जाइए, you will get all the previous year questions for free there, along with solutions, both for phase 1 and phase 2. तो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है. और डिटेल सिलेबस को समझने के लिए यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप ये भर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम कंप्लीट डिटेल्स पैटर्न एंड सिलेबस. आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारा सिलेबस को भी डिकोडिंग मिल जाएगा. द फोर्थ स्टेप इज, वंस यू आर क्लियर कि मुझे आरबीआई देना है, दिस इज माय प्रायोरिटी एग्जाम, एंड यू हैव दैट सेल्फ बिलीफ एंड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, द नेक्स्ट स्टेप दैट यू शुड बी डूइंग इमीडिएटली इज टू मेक अ टाइम टेबल एंड सेलेक्ट योर बुक्स और रिसोर्सेस. तो एक ब्रॉडर टाइम टेबल है जो मैं आपको दे रहा हूं. From June to August, you should be doing quant, reasoning and FM along with answer writing of FM. Then September and October, you should be doing ESI and descriptive English along with practice of quant and reasoning and revision of FM. Then in November and Feb, you should be reading current affairs, revision of ESI, start giving mock tests. So your
preparation is almost complete by Feb or maybe even before that. So that's a very good timetable and it takes into account various aspects. We are preparing for phase 1 and phase 2 in an integrated manner. हम यहाँ पे phase 1 के subjects भी कर रहे हैं, phase 2 के subjects भी कर रहे हैं in all of these blocks, and we are focusing on art of doing limited things. कि ब्लॉक 1 में इतना करना है, ब्लॉक 2 में उतना करना है, बिकॉज व्हेन यू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स यू आर एबल टू बी बेस्ट एट योर प्रोडक्टिविटी एंड यू गेट अ मोटिवेशन व्हेन यू कंप्लीट योर टारगेट्स, राइट. और रिवीजन पे बहुत फोकस है यहाँ पे, आप देखिए कॉन्स्टेंटली आई एम आस्किंग यू टू रिवाइज. तो ये एक ब्रॉडर टाइम टेबल आपको चूज करना है. आई विल ऑल्सो टेल यू द स्ट्रैटेजी, ठीक है, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की अलॉन्ग विद बुक्स. अगर क्वांट की बात करें तो इफ यू सी द कट ऑफ्स इन क्वांट हैज नेवर बीन मोर देन 7.5. And when the exam has been tough, the cutoffs have even been lower. तो आपको क्वांट से डरना नहीं है. बहुत सारे लोगों को लगता है सर क्वांट बहुत टफ होगा, ऐसे डरना नहीं है. अगर आप कट ऑफ देखेंगे इट कैन बी इजिली मैनेज, ठीक है. आपको पेपर में 25 मिनट्स मिलते हैं क्वांट में एंड यू आर गिवन 30 क्वेश्चंस. आर यू रिक्वायर्ड टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स और यू कैन यू सॉल्व इट? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट सॉल्व इट, राइट. Is it required to solve 30 questions in 25 minutes? The answer is again no. Why it is not required? Because cut off देखिए यार, cut off तो 7.5-8 जा रही है, आपको 10 क्वेश्चन करने, that's it. So why would you study the whole of the quant, right, to solve these 10 questions? So that is not required. आपके पास टाइम है, आप सारा करो, but I think you just cover 60% of your syllabus. That is, do selective topics, but whatever topics you do, you practice them well. You practice them really hard because exam में क्वेश्चन आसान नहीं आएंगे. Do not just try to cover all the topics superficially because that is not going to help you. ये selective topics कौन से होंगे? देखिए, एक तो नंबर सीरीज हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम एंड वर्क आप लिख लीजिए साथ साथ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, देन स्पीड टाइम डिस्टेंस, जिसमें आप बोर्ड्स के, ट्रेन्स के सारे क्वेश्चन करेंगे. ये कुछ चैप्टर्स मिनिमम आप करके जाएं. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ इफ यू प्रैक्टिस वेल ऑन दीज टॉपिक्स. क्वांट की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, कैट के लिए है बट आरबीआई ग्रेड बी के लिए रेलेवेंट है. इस बुक को आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है. कमिंग ऑन टू रीजनिंग, रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे कट ऑफ्स काफी कम जाती हैं. आउट ऑफ 60 दे आर गोइंग 15, राइट. एंड व्हेन द एग्जाम हैज बीन टफ द कट ऑफ हैज बीन 8 और 9. तो यहाँ पे अगेन आपके पास एक सेम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में व्हाट विल हैपन इज 45 मिनट्स में दे विल गिव यू 60 क्वेश्चंस. कैन यू सॉल्व 45 minutes में 60 questions? The answer is no. Is it required for you to solve 60 questions? The answer is again no. Cut off तो 15 जा रही है, 20 भी ले आए तो काफी है. That will also help you to clear the overall cut off. So again, selective topics करो, but जो भी करो अच्छे से करो. Puzzles और sitting arrangement में से काफी क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30. You can master them if you really have the ability. नहीं तो puzzles और sitting arrangement को मत लो, वो काफी रिस्की हैं. Rather focus on other topics. सारे टॉपिक्स कर लो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स को छोड़कर. दैट कैन बी गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर रीजनिंग फॉर द अपकमिंग 2024 एग्जाम. और रीजनिंग के लिए द बेस्ट बुक इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल. इस बुक में आपको काफी ज्यादा टॉपिक्स मिलेंगे, बट यू नीड टू चूज सेलेक्टिवली बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी. इस चीज को याद रखना, नहीं तो इस बुक को करते करते आपको साल लग जाएगा. बाकी उसके बाद आए हम एफएम पे, ठीक है. क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया. इफ आई टॉक अबाउट एफएम इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट और फाइनेंस, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं. इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट में आपको सारा सिलेबस करना है. देयर हार्डली 15 टॉपिक्स. इट्स वेरी स्कोरिंग, देयर आर नो करंट अफेयर्स. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. सो कुछ नहीं छोड़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, बार बार पढ़ना है. थ्योरीज कैन बी कंफ्यूजिंग, बट जस्ट रीड व्हाटएवर इज गिवन इन योर सिलेबस बहुत अच्छे से बार बार. बुक्स बता देता हूं मैनेजमेंट की. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल.एम. प्रसाद. दोनों बुक्स पढ़िएगा, दोनों एल.एम. प्रसाद की हैं. एंड फॉर एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू कैन रीड बी.एन. घोष की बुक. ये 3 किताबें पढ़ लीजिए, यू विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ योर मैनेजमेंट सिलेबस. एफएम पे आऊं तो एफएम में आपको कुछ स्टैटिक पार्ट मिलेगा पेपर में, कुछ करंट पार्ट मिलेगा. स्टैटिक पार्ट की बात करें, विच इज ऑलमोस्ट हैविंग अ वेटेज ऑफ 75%. स्टैटिक पार्ट में देयर इज हिल लॉट ऑफ सिलेबस, बट there are certain chapters which are core and are most important. Income statement, balance sheet, ratios and cash flow,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, नॉन बैंकिंग सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से जब पढ़ेंगे तब ये ज्यादा समझ आएगा कि मैं कौन से चैप्टर बता रहा हूं। राइट नाउ यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट, बट यही चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे कोर हैं। अगर आपने इनको समझ लिया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ फाइनेंस एंड देन यू कैन रीड एवरीथिंग। द चैप्टर्स विच आर सेपरेट फ्रॉम दीज, you should not leave them, but they would just be a cakewalk which can be read very quickly, I would say. करंट अफेयर्स की बात करूं तो उसमें दे कैन आस्क यू फ्रॉम यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दे कैन आस्क यू फ्रॉम द न्यूज रिलेटेड टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी न्यूज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स वुड बी आरबीआई नोटिफिकेशंस। एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले जितनी भी आरबीआई की नोटिफिकेशन है, रेगुलेशन है, दैट यू शुड बी रीडिंग, उसी में से आपके मेजॉरिटी करंट अफेयर्स आएंगे फाइनेंस के पेपर में। तो ये फाइनेंस की स्ट्रैटेजी होगी। एफएम ओवरऑल इज वेरी वेरी स्कोरिंग, यू शुड गेट एन स्कोर ऑफ इन अ रेंज ऑफ 75 प्लस इन एफएम, दैट ओनली विल पुश योर कैंडिडेचर फॉर द फाइनल लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। बुक्स की बात करें फाइनेंस में तो there are no standard books for finance as in for marketing, I told you, but ये कुछ बुक हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बाय मैकमिलन एजुकेशन या बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन। ये बुक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक, बहुत बल्कि है, आई डू नॉट रिकमेंड दिस बुक। देन फॉर सर्टन चैप्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यू कैन रीड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। एंड फॉर अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक्स सच एज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोज, यू कैन रीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय आई.एम. पांडे। तो ये कुछ बुक्स हैं, आप इनको यूज करके यू कैन रीड योर सिलेबस इन बिट्स एंड पीसेस, बट नो बुक विल हेल्प यू इन फाइंडिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस। यू वुड हैव टू गूगल अ लॉट, यू वुड हैव टू सर्च अ लॉट। करंट अफेयर्स की बात करें तो आरबीआई की वेबसाइट पे आरबीआई नोटिफिकेशंस हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। फॉर न्यूज रिलेटेड टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यू कैन रीड फ्रॉम लाइव मिंट, एंड फॉर अदर करंट अफेयर्स यू कैन रीड यूनियन बजट, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, reports on trends in banking industry by RBI and financial stability report by RBI। ये कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। Now coming on to answer writing, answer writing is very very important part. You must be writing all your answers, right? The moment you start reading, covering your chapters, you should be doing answer writing. Do not delay till end. First, understand the basics of answer writing, intro, body, conclusion, and just practice it. Practice easy questions, practice difficult questions. Answer writing is a skill. You need to devote time on continuous basis, then only you will learn answer writing. Then, talking about ESI, ESI में it's opposite to FM. Static ज़्यादा नहीं आएगा, current ज़्यादा आएगा। Static की बात करूं तो ये कुछ चैप्टर्स हैं विच आर द कोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। यही कोर है, ये समझ आ गया, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द करंट अफेयर्स, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म गुड इन द इंटरव्यू। तो इस पे फोकस करना है, बाकी चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बिकॉज उन चैप्टर्स में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूं सो देयर आर टू पिलर्स वेयर यू शुड बी फोकसिंग मेनली। वन इज योर रिपोर्ट्स, another is schemes. So reports और गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस करना है। When I tell you about reports, यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं या नेशनल बॉडीज हैं, मेजर जैसे कि नेशनल लेवल पे नीति आयोग हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। इंटरनेशनल बॉडीज में आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, OECD, इन ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स पे फोकस करना है। और ये सारी आपको एग्जाम से 6 to 9 मंथ्स पहले की करनी है। स्कीम्स भी आपको 6 to 9 मंथ्स पहले की करनी है। दोज विच आर इन न्यूज मतलब आप एक गवर्नमेंट वेबसाइट है PIB की वेबसाइट पे जो भी स्कीम न्यूज में है, फॉर वॉट एवर रीजन, न्यूज चाहे छोटी है बड़ी है, जो भी स्कीम न्यूज में है उस स्कीम को आपने पढ़ना है जो PIB पे 6 से 9 महीने पहले न्यूज में है। दैट्स इट। ये स्कीम्स में से बहुत पेपर आता है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ESI के पेपर में आप तभी नंबर स्कोर कर पाएंगे इफ यू आर गुड ऑन रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। और ESI के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन रीड रमेश सिंह, और सोशल इश्यूज के लिए यू कैन रीड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं, बट एज आई टोल्ड यू स्टैटिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है।
टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, नंबर उतने नहीं आएंगे। ESI करंट के लिए यू कैन रीड रिपोर्ट्स फ्रॉम हिंदू एंड स्कीम्स फ्रॉम PIB। यही दो चीजें हैं जो मेन है, रिपोर्ट्स फ्रॉम हिंदू एंड स्कीम्स फ्रॉम PIB। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वांट एंड रीजनिंग पे, FM की रिवीजन करनी है इस टाइम पे, बिकॉज यू शुड नॉट बी लूजिंग टच विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। फिर बारी आती है करंट अफेयर्स की। वी आर स्टार्टिंग करंट अफेयर्स इन नवंबर एंड नॉट अर्लियर, बिकॉज नवंबर के बाद के ही करंट अफेयर्स वुड बी मोर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। एज आई टोल्ड यू, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So before November you should be focusing on covering the static part, because उसके बाद static के लिए टाइम नहीं मिलेगा। नवंबर में we are not late, it's really good time to start with the current affairs। करंट अफेयर्स करेंगे, साथ में ESI की रिवीजन करेंगे यहां से जो हमने पढ़ा था, मॉक टेस्ट देने शुरू करेंगे फॉर फेज 1 एंड वी विल डू ESI आंसर राइटिंग। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, ऑलरेडी टोल्ड यू, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, रिपोर्ट्स पढ़नी है, RBI नोटिफिकेशंस पढ़नी है, साथ में GA पढ़ना है। GA में क्या आते हैं आपके जो नॉर्मल हेड्स होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, partnerships, MOUs, alliances of the government, themes of important days, science and tech, persons in news, their appointments, their obituaries, important summits and conferences, cyclones, hurricanes, famous awards, नॉर्मल चीजें जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो आपको GA में पढ़नी है। बट GA इज नॉट ओनली सफिशिएंट, इवन फॉर फेज 1 यू नीड टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड RBI नोटिफिकेशंस। ठीक है, और बाद में फेब ऑनवर्ड्स आपकी पूरी तैयारी है, आपको बस रिवाइज करना है। जो भी आपको लग रहा है मेरा वीक है उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देने शुरू करो फेज 2 के भी, और न्यू करंट अफेयर्स साथ साथ में करते रहना है। एग्जाम अगर अप्रैल में है तो फेब, मार्च, अप्रैल के भी करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, और आंसर राइटिंग को और स्ट्रांग बनाना है। तो ये एक टाइम टेबल है विद बुक्स। ठीक है, और हमारा RBI ग्रेड बी का 2024 के लिए गोल्ड एंड सिल्वर पैक भी है, यू कैन एनरोल इनटू एनी ऑफ दीज। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर पैक इज के गोल्ड में आपको सब कुछ मिलेगा, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, मेंटरशिप, डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन, फुल एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। सिल्वर पैक में आपको फेज 1 की सिर्फ GA मिलेगी, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा और मॉक टेस्ट भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ GA मिलेगी। फेज 2 का सारा मिलेगा जो गोल्ड में है, इंटरव्यू का सारा मिलेगा जो गोल्ड में है, और इन केस यू वांट टू चेक सम फ्री मटेरियल, सम सैंपल मटेरियल, यू कैन चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा दैट व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग। और कंटेंट एक तरफ है, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू मेंटरशिप। आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है टेक्निकल, कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर RBI ग्रेड बी 2024। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।